Hello everyone, welcome to Witsake. So today we are going to start a new video series on probability theory. Probability theory, I think you all are aware about the word probability. Basically, something related to prediction and chances. So what we are going to study in this topic include the following contents. The first topic that we are going to study in this particular chapter is the introduction. What is probability? क्या है probability? What are its field of application? इसका origin क्या है? And some related terminologies that will be a basis for our further study into the chapter. Now the second topic that we are going to study is classical, axiomatic and empirical definition of probability. Probability actually में दो तीन तरीके से calculate किया जा सकता है. There are 2 to 3 approaches of calculating a probability. And what are these 3 approaches? We will study about these things. Okay. After that, we will move on to addition theorem. These are some important theorems that will help you to calculate the probabilities. Then we will move on to the conditional probability, multiplication theorem, independent and dependent events, जो कि board के perspective and competitive exams के perspective से the important topic. After which we will be dealing with the total probability theorem and the Bayes theorem. And Bayes theorem is a topic जिससे बोर्ड में एक 100% श्योर क्वेश्चन आता ही आता है. So this will be also a very important topic for our study. After which we will study about the probability distributions and binomial probability distribution. Probability distribution is one of the very important topics in the study of probability. And why this is important, how this is being used in the real life scenarios that we are going to study under this topic. इसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिकल ट्री डायग्राम को पढ़ेंगे. दिस इज अ टूल, बेसिकली एक इजी सा वे है जो इकोनॉमिस्ट और बाकी कॉमर्स वगैरह में जो प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने वाले लोग हैं उनको इसको यूज करते हैं, बिकॉज दिस गिव्स अ सिंपलर अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग अ प्रोबेबिलिटी. एंड आफ्टर विच वी विल बी स्टडी अबाउट द कोइंसिडेंस टेस्टिमोनी एंड ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी एंड ऑल अदर एडिशनल स्टफ्स. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, मजा आने वाला है इस चैप्टर में, दिमाग लगाना है, काफी सारे क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो बिना फर्दर डिले के लेट्स गेट इनटू द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन विद प्रोबेबिलिटी. नाउ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक फेमस मैथमेटिशियन का स्टेटमेंट लगाया है एंड व्हाट ही सेज अबाउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रिमार्केबल दैट अ साइंस व्हिच बिगेन विद द कंसिडरेशन ऑफ गेम्स ऑफ chance should be elevated to the rank of the most important subject of human knowledge. Now, अब इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि what is saying that this is a subject which evolved from games of chance. Games of chance basically the dice games, cards and the gambling stuff kind of things, and it originated from that particular thing, and today it is one of the most important subject of human knowledge. So this is the statement of Simon Laplace. Laplace is a famous mathematician and that is what he says about the probability. Now, probability है क्या? I think the first statement by mathematician himself is enough for you to understand the importance of the chapter and the origin of the chapter. But now I'll tell you more about it. Probability basically है क्या? Probability in my words, or you can say that it is basically a science of prediction. You are predicting something कि ये होगा या नहीं होगा. And probability, what does probability do? Probability just quantifies your prediction. मतलब आप उसमें एक नंबर असाइन कर देते हो कि यस ठीक है, देयर इज अ चांस कि 50% चांस से हो जाएगा, 50% चांस नहीं होगा. कुछ आपको लगता है कि हाँ इसके होने का चांसेस तो काफी हाई है, देन यू से कि 90% चांस है कि ये होगा ही होगा, ये पर्टिकुलर थिंग फ्यूचर में होने वाला है, 10% चांस है कि नहीं हो. ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. जैसे होता है ना वेदर प्रेडिक्शन, कल बारिश होगी या नहीं होगी, देयर इज अ चांस. आज बादल लगे हुए तो हम लोग कहते हैं अरे कल तो पक्का होना ही होना है बारिश, आज नहीं हो सकती है, आज कम चांस है या कल ज्यादा चांस है. वी ऑलवेज डू सच काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस. एग्जाम में अगर कोई काफी अच्छा बच्चा है, एज इंटेलिजेंट पर्सन, और वो कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन यू से कि हाँ ये 100% पास होगा सर, इसको क्या प्रॉब्लम है, 100% इसके 90 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे मैथ्स में, मिनिमम आप रख के चलो, है ना. तो यू आर सेइंग यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन. व्हाट यू आर डूइंग दैट यू आर actually what you are doing, you are actually predicting the result in advance and you are quantifying that particular thing also. ठीक है. So basically probability gives a measure of likelihood. Yeah, it is a science of prediction, but the point to be noted is that probability can never predict the number of times that an event या occurrence actually happens. आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कितनी बार ये होगा. जैसे कि देखो आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है ना,
कॉइन को टॉस करोगे तो आप समझते हो कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, देयर इज अ 50-50 चांस कि हेड आएगा या टेल आएगा। बट अगर मैं बोलूं कि मैं 5 बार कॉइन टॉस करूंगा या 6 बार मैं कॉइन टॉस करूंगा, क्या तुम कह सकते हो दैट ऑब्वियसली 3 बार हेड आएगा 3 बार टेल आएगा? यू कैन नेवर से कि हाँ 3 बार हेड आएगा ही आएगा। देयर इज अ चांस, आ सकता है, 3 से ज्यादा हो सकता है, 3 से कम हो सकता है, बट यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि 3 बार हेड आने ही आने वाला है। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द statement that probability can never predict the number of times that an occurrence actually happens. Okay, I think this is clear. So now in the next slide we are going to deal with the field of applications. Actually probability apply कहाँ हो रहा है, because एक बार हम जान जाए ना apply कहाँ हो रहा है तो that subject becomes more interesting, हम relate कर पाते हैं. So basically I will tell you one by one the field of applications. The first field of application is weather forecasting. This is one of the most फेमस एप्लीकेशन जो आप कह सकते हो, जो आप रोज देखते हो, बिकॉज न्यूज चैनल खोलो तो प्रेडिक्शन चल रहा होता है। प्रेडिक्शन क्या होता है? टेम्परेचर कल कितना रहने वाला। आप तो श्योर नहीं हो ना कि कल टेम्परेचर कितना रहने वाला, आप ये भी श्योर नहीं होते हो कि हाँ कल बारिश होगी या नहीं होगी, बट दे आर प्रेडिक्टिंग दिस थिंग्स कि हाँ देयर इज अ चांस, कल 90% चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन है। गूगल खोल के देखो, वेदर प्रेडिक्शन चेक करो, उसमें लिखा हुआ होगा 90%, 70% प्रेसिपिटेशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट देयर इज अ चांस बारिश हो सकती है, 70% चांस है, 80% चांस है। अगर 90% चांस बारिश का लिख देता है अगर वेदर प्रेडिक्शन, तो हम लोग एश्योर होकर के चलते हैं कि आज कल या बारिश होने वाली है, बट दैट इज नॉट श्योर। आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि हाँ ये होने ही वाला है, बट दिस इज व्हाट यू डू द प्रेडिक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ 7 दिन का, 15 डेज का, 30 डेज का, दिस इज लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्टिंग ऑल्सो। द नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आप समझ सकते हो दैट इज कॉमर्स एंड मार्केटिंग। भाई फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये सब कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी पे काम तो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप इतने दिन से स्क्रॉल कर रहे हो, वेदर यू आर गोइंग टू बाई इट और नॉट, तो सम काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी दे आर आल्सो यूजिंग। जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लाती है तो उसके पीछे भी उसके प्रोडक्ट का बिकने या नहीं बिकने का भी कुछ चांसेस होता है, वो गेस करती है। अगर उसके प्रोडक्ट के सेल का प्रोबेबिलिटी हाई है अंडर द गिवन मार्केट कंडीशंस, तभी वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करती है ना। आइडियाज तो बहुत आते हैं, बट इफ देयर इज अ पोटेंशियल एंड देयर इज अ more high probability that we are going to earn from this particular product, then only we introduce that product. Stock market is another field जो आप commerce में आप include कर सकते हो। Stock market is a field where probability is of utmost importance. वहाँ पे भी prediction काफी high level पे होता है। और एक simple सा example और मैं दूँ तो क्रिकेट में भी betting होता है, and there is also you are playing a game of probability. जरूरी नहीं होता कि जो पर्सन बेटिंग कर रहा है या जो फिक्सिंग कर रहा है, आप ड्रीम 11 में खेलते हो, आप तो एक गेस करते हो ना कि आप जब टीम बना रहे होते हो, देन इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू आर गेसिंग कि वेदर हम लोग ये टीम मेरे को जिता सकती है या नहीं जिता सकती है, आई विल अर्न और नॉट। दैट इज आल्सो अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी देयर। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर। For those of you who have already studied the structure of atoms and you all, on those of you are aware with the orbital theory, S block, P, D and F, I think you all are aware with the word probability density function. तो एक तो मैं वहां से relate कर रहा हूँ, and there are a lot of other applications from radioactivity and all other fields probability is used there. ठीक है, तो physical sciences में तो है ही, and the doctors also use this thing, doctors or the scientists or this particular thing is used in genetics and biology also. एक simple सा example है, हम लोग एक टेबल क्रिएट करते थे इन क्लास 9th, आई थिंक हेरिडिटरी इवोल्यूशन वाला, जहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते थे कि कोई ट्रेट रिटर्न आने का क्या थिंग है, और एक टेबल जैसा क्रिएट करते थे। दिस इज व्हाट दिस इमेज इज स्पीकिंग अबाउट। सो प्रोबेबिलिटी हैज अ वास्ट एप्लीकेशन इन जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स वेयर प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड, बट ये 4 मेजर प्रोमिनेंट सेक्टर्स थे जो मुझे लगा आपको बताना इंपॉर्टेंट। नाउ ऑरिजिन क्या है? जैसे कि पहले स्लाइड में ही हमने लैप्लास के स्टेटमेंट में देखा था कि लैप्लास बता रहा था दिस वाज ओरिजिनेट फ्रॉम द गेम ऑफ चांस, एंड एक्चुअली दिस इज द फैक्ट दैट प्रोबेबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम गेम्स ऑफ चांस, एंड दैट इज गैम्बलिंग। और इसके पीछे देयर इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस थिंग। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ ब्रीफ ऑफ दिस स्टोरी। छोटा सा है, आइडिया आपको मिलेगा और इंटरेस्टिंग भी है, दैट्स व्हाई। There is a gambler whose name was Xavier de Meer. Actually, he was known by this famous name. उसका नाम कुछ और था, Xavier de Meer. He was a famous gambler. ये फ्रांस का गैम्बलर था और he used to do betting करता था। But एक डाइस प्रॉब्लम इसमें आया। फ्रांस में एक्चुअली लोग डाइस पे लगाते थे कि 2 आ जाए तो बेटिंग होता था कि अगर तुम 6 बार रोल कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं मतलब 2 आ गया तो वो जीत गया, अगर नहीं आया तो हार गया। इट्स सम काइंड ऑफ गेम जो शकुनी खेला करता था, पासा वाला गेम, महाभारत में, हमारे महाभारत में जो मेंशन है।
So Chevalier D Mayer भी ऐसा ही एक गेम खेलता था, and one day due to some problem that I'll going to discuss in the further slide, he approached a French mathematician named Pascal for the solution of his problem. Pascal discussed this problem with another mathematician Fermat, and together Pascal and Fermat basically laid down the foundation of the theory of probability. इनके इसी प्रॉब्लम से कहा जाता है कि ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है, एंड द पर्सन्स बिहाइंड दिस आर ब्लेस पास्कल एंड फर्मेट, बट द प्रॉब्लम was Chevalier D Mayer's problem, and the problem got famous also, and the scientists, the mathematicians also got famous, but the origin was from Chevalier D Mayer. Now अब प्रॉब्लम क्या था? देखो प्रॉब्लम ऐसा था कि जो डिमेयर था वो डिमेयर क्या करता था, एक गेम खेलता था. उसका गेम क्या था कि ही यूज्ड टू रोल अ डाइस 4 टाइम्स वो डाइस को रोल करता था, एंड ही यूज्ड टू बेट ऑन द फैक्ट दैट वेदर आई विल गेट एटलीस्ट अ 6 और नॉट. मतलब 4 रोल्स में से एक बार भी अगर 6 आ जाता तो डिमेयर जीत जाता था. ठीक है, अब डिमेयर जीतता था. अब डिमेयर को ऐसा लगता था कि इतना तो पक्का उसको लगता था, बेसिक उसके जो अंडरस्टैंडिंग से था कि 6 में से एक पॉसिबिलिटी है उसके 6 आने का. तो वो क्या करता था, वो सोचा कि अगर 4 बार रोल करने का हम रखें, देखो उसका प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत है, मिसकंसेप्शन है उसके माइंड में, बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द थ्योरी उसको ऐसा लगता था एज पर हिज एक्सपीरियंस, और वो इसलिए डिसाइड किया कि 6 में से 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 6 आने का जो चांस होता था उसको 1/6 लगा. अप टू दिस एक्सटेंट ही वाज करेक्ट. देन ही थॉट कि अगर इसको 4 बार रोल करेंगे देन द प्रोबेबिलिटी कि मेरे जीतने का या 6 आने का वो 2/3 हो जाएगा. मतलब उसको लगा कि उसका परसेंटेज जो है, वो चांस जो है जीतने का, वो 66 या 67% का राउंड हो जाएगा. ऑब्वियसली ही वाज रॉन्ग, बट जब वो ये गेम खेलता था ही यूज्ड टू विन, वो जीतता था, उसका एक्सपीरियंस उसको यही कहता था. अब वो बेचारा क्या सोचा, भाई प्रॉब्लम क्या हुआ कि बार बार कोई जीत रहा तो सामने वाला थोड़े ना हर समय तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहेगा. तो वो कंटिन्यूअसली जीत रहा था. देन ही गॉट बोर्ड, और उसके जो सामने उसके अपोजिट में जो बेट लगाते थे वो भी बोर हो गए, उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे. सो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू काइंड ऑफ गेम. अब नया काइंड ऑफ गेम क्या था कि वो एक की जगह 2 डाइस को रोल करने लगा, और बेट क्या लगाया कि दोनों डाइस में 6 आ जाएगा. ठीक है, एक की जगह पे 2 डाइस को रोल करता था, एंड ही बेटेड दैट इन बोथ द डाइस ही विल गेट अ 6. अब भाई दोनों डाइस में 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/36 होता है. तुम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हो कि सर 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके सैंपल स्पेस बनाएंगे, आउटकम्स पॉसिबल, एंड डिवाइड करेंगे तो वो 1/36. जिनको नहीं समझ में आ रहा वो आगे पता चलेगा. तो 1/36 वो सोचा. अब वो क्या किया कि अब उसको डिसाइड करना था कि वो कितनी बार रोल करने का चैलेंज रखे. तो वो सोचा कि पुराने वाले में तो मेरा 2/3 आता था चांस जीतने का, तो इसमें अगर 2/3 लाना है देन आई हैव टू पिक इट 24. तो वो 24 टाइम्स उसको रोल करना स्टार्ट कर दिया. 24 टाइम्स रोल करने लगा क्योंकि उसको लग रहा था कि दोनों केसेस में उसके जीतने का चांस सेम है. स्टार्टेड द गेम, बट द अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड, और वो कंसिस्टेंटली सेकंड वाले गेम में हार रहा था. फर्स्ट वाले गेम में जीतता था, बट इन द सेकंड गेम ही कंसिस्टेंटली लॉस्ट, बार बार हार रहा था. नाउ द प्रॉब्लम की यार हम 24 बार रोल करते हैं पर यार फिर भी हम हार रहे हैं. मतलब 24 में ऐसा भी नहीं हो पा रहा है कि 2 बार दोनों डाइस में 6 आ जाए एक रोल में, है ना. एंड विद दिस प्रॉब्लम ओनली वो उसको इसका रीजन जानना था, बिकॉज ही वॉज इन अ मिसकंसेप्शन कि यार दोनों में तो मेरा चांस सेम है 2/3, फिर हम क्यों हार रहे हैं. सो उसको इसका रीजन जानना था, एंड दैट्स व्हाई ही अप्रोच्ड पास्कल उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया. वो कैलकुलेट करके बताया कि देखिए तेरे सेकंड गेम में जो जीतने का प्रोबेबिलिटी दैट इज ओनली 49.1%, और तेरे फर्स्ट गेम में वो जीतने का प्रोबेबिलिटी 51.8% था, जो कि शेवलियर 66 या 67% समझ रहा था इन बोथ द गेम्स, 2/3, बट इन एक्चुअल पहले वाले गेम में 51.8% था जिसको वो जीत रहा था. ऑब्वियसली चांस उसके जीतने का ज्यादा था. इन द सेकंड गेम जो इंट्रोड्यूस कराया उसमें 49.1% था जिसमें वो हार रहा था. पास्कल उसको एडवाइस किया कि नंबर ऑफ रोल्स बढ़ाओ, 25 या 26 रखो, तब तुम्हारा ये दोनों चीज सेम हो जाएगा. And it is really very interesting to note that the entire theory arose from a simple dispute between the gamblers. So यहाँ से theory of probability आता है, और बाद में इसको और एडवांस बनाने में रोल आता है बर्नौलिस का, कोलमोग्रोव का, और काफी सारे मैथमेटिशियंस का. तो दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी ओरिजिनेटेड. बट ये तो रही स्टोरी की बात. अब आपके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एप्लीकेशन तो आप तब करोगे ना जब आप एक्चुअल वर्ल्ड में जाओगे और इंजीनियर बनोगे या साइंटिस्ट बनोगे, व्हाटएवर अपने स्पेसिफिक डोमेन में जाओगे. बट बिफोर दैट पॉइंट हमारे पास होता है एग्जाम. सो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग समझते हैं. देखिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के लिए समझना चाहते हो
तो सीबीएसई बोर्ड में आपका प्रोबेबिलिटी 10 to 12 मार्क्स का आता ही आता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका एक या दो क्वेश्चन बेस थ्योरम से जरूर आएगा और कुछ प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं। इस पर्टिकुलर ईयर में ड्यू टू कोरोना वायरस ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिया गया है, बट स्टिल द वेटेज इज अराउंड 8 to 10 मार्क्स। और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी से श्योर एंड सर्टेन है ही है, एंड बेस थ्योरम इज श्योर एंड सर्टेन। आईसीएसई बोर्ड में भी सेम स्टोरी है, वहां पे भी सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, बट अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी इज श्योर एंड सर्टेन एंड पर्टिकुलरली बेस थ्योरम इज श्योर एंड सर्टेन। किसी भी आप स्टेट बोर्ड में चले जाओ 8 to 12 मार्क्स, अगर मैं 100 का बात करूं टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम के लिए, तो 8 to 12 मार्क्स का वेटेज किसी भी स्टेट बोर्ड में प्रोबेबिलिटी का होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा, और इजी प्रॉब्लम्स भी होते हैं बोर्ड के अंदर, तो आप इसमें श्योर सर्टेन मार्क्स ला सकते हो। नाउ द इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो इसको इंजीनियरिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तेरे लिए, बिकॉज जेई मेंस और जेई एडवांस में 1 to 2 क्वेश्चंस फॉर श्योर है। जेई मेंस में एक तो एक श्योर है, और अगर इनकेस स्टैटिस्टिक्स से प्रॉब्लम नहीं आया तो दूसरा प्रॉब्लम भी प्रोबेबिलिटी से आ सकता है। जेई एडवांस में काफी अच्छे प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी से आते हैं, बिकॉज दिस इज चैप्टर विच प्रोवोक्स योर थिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स। तो जनरली हॉट्स प्रॉब्लम होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर कैन हेल्प यू टू इंप्रूव योर रैंक। क्वालिफाई करने के लिए काफी चैप्टर्स हैं, बट ये एक क्वेश्चन होता है जो एक अच्छे थॉट वाले स्टूडेंट से ही बनेगा अगर वो अच्छा प्रॉब्लम हुआ तो, एंड दैट कैन हेल्प यू टू मेक अ डिस्टिंक्शन अगर तुम इसको अच्छे से समझते हो और अच्छे से पढ़ते हो। सो जेई मेंस और एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जो एनडीए, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप 100% एश्योर्ड रहो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को मिस कर दिया जाए। सो प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर ब्रांच में काम आता है। सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसलिए हम लोग इसको खासा एम्फेसिस करेंगे और टॉपिक्स को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे विथ इन डिटेल एवरीथिंग। अराउंड हम लोग 50 to 60 क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आई विल प्रोवाइड यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल दीज एग्जामिनेशंस, ठीक है। मैं वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग पढ़ो। एंड प्रोबेबिलिटी अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई प्रॉमिस यू कि हम लोग यहां से कंसिस्टेंट वीडियो सीरीज लाएंगे। सो we'll be starting probability formally from the next chapter with the introduction of terminologies. So thank you very much for watching. अपने queries और feedbacks को 40frizal@gmail.com पे mail करें, and please यार like and subscribe my channel because this gives me a motivation to make more and more videos for you. So thank you very much for watching.